So students, you have this question in front of you, that suppose that all the terms of an AP are natural numbers, and if the ratio of the sum of the first 7 terms to the sum of the 11 terms is 6:11. So what is given? The ratio of sum of 7 terms to the sum of first 11 terms. What is the ratio, students? 6:11. 6:11. Okay. So how many informations are actually given to you in this question? All the terms are natural number. This is the first information that you have. What is the second information? The ratio that I have just written. This is the second information given to you in this question. And what is the third information that you have? The 7th term lies between 130 and 140. So first information that you have is all terms in AP. All terms of the AP are natural numbers. And the third thing is that 7th term lies between 130 and 140. So these three things are given to you. Now what you have to find? Common difference. Yes, you have to find common difference. So student, this question was in 2015. It was in IIT. Okay. So this question was asked in 2015 in IIT. So you have to answer this question. So yes, you can start doing this question. So you can start with one of the conditions which are given. You can start from here. S7. So what's the formula you have, students, for sum of n terms? We need D here. So of course in terms of D you can write. So n by 2. N by 2a plus Yes. 2a minus 1 into D. Yes. So n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. So students, what is n here? 7. So 7 by 2 into 2. We don't know what is a. Okay. Yes, Plus sir. what is n here? 7. 7 minus 1d, right? Divided by. 2a plus 60. Okay. And what is S11? What is n this time now? 11. 11 by 2 into 2a plus yes. 10d. Okay, you can write 10d directly. Okay, fine. Okay. So 2a plus 10d, and that is equals to 6 by 11. 6 by 11. Fine. Now we can further calculate it, students. So this 11 by 1 you can say, so 11 cancels out, and this 2 will also cancels out. Okay, agreed? Now multiply 7 with this, what you get? 14a plus 42d. 42d, yes, absolutely good, is equals to what do you get this side, students? 6. 6 multiply this, 12a Plus 60d. plus 60d, yes, good. Now what do you get, students? Can you further simplify it? 12 will come this side, so what will? Sir, A is equals to 19. Yes, okay. Yes, it's 9. Okay, good. So you are absolutely correct. A is equals to 9d. That is the result you have found. So you have found the first term in terms of D. Now students, this is the result that we have got from the second information that was given to us. Now what is the third information given to us?
Okay. So that's About the terms. okay, what can you tell about this from the first information? All terms are natural number. What can you tell about A? A belongs to natural number. What about D? D is also belongs to set of natural numbers, because if all the terms are in D, so difference of two natural number is also a natural number. That is the closure property of natural numbers. Okay. Yes. So natural numbers are closed for the operation subtraction. Got it? Yes, sir. Now students, let us use this third given thing that is given to us. So what is it? 130 is, so T7. What is T7? So what is your, you would like to write the term AN. What is AN? AN is equals to A plus N minus 1 into D. So you can write AN or you can write TN. That is the same thing. Yes, sir. So TN is equals to, A7 equal to 15D. okay, very good, very good. That's absolutely correct. So A plus, so N is your 7. So 7 minus 1 is 6. So 6D is less than 140. And put the value of A here. What do you get, students? 9D. Yes. So 9D plus 6D, 15D. 15D. Now can you divide all sides with 5? What do you get here? Yes. 5 times 2, 10, and 5, 6 the 30, and then 3D, and then here 28. 28. Now divide these sides with 3 students. What do you get? 26 divided by 3. 3 at the 24.66, and that's D, and 28 divided by 3 students, 9.33. Yes, agreed? Yes, sir. Now you know that D is a natural number. Yes, this is the first thing given to us. From this we have concluded that D belongs to natural number. Sum of two, difference of two terms, common difference. So students, what I get as value of D? See, which natural number is between 8.66 and 9.33? 9. 9. 9. So I got the value of D as 9. So this was your question, students. Note it down. See the questions. भाई लास्ट स्टेप फिर से बता दो. ओके, देखो एक बार और मैं बताता हूँ. इसका नीचे सॉल्यूशन भी कर रखा है, नीचे एक बार और आप देख लो. देखो स्टूडेंट्स, इसमें 3 चीजें गिवन थी हमें इस क्वेश्चन में. फर्स्ट, ऑल टर्म्स ऑफ द एपी आर नेचुरल नंबर्स. अगर आपके की सारी टर्म्स नेचुरल नंबर हैं तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है, अगर आपकी जितने भी टर्म्स हैं वो क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो जो कॉमन डिफरेंस उनका होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर. ओके, तो ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गया आपके पास. सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, ये कि सम ऑफ 7 टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ 11 टर्म्स, द रेशियो इज 6:11. दिस इज द सेकंड थिंग विच इज गिवन टू यू. ओके, and what is the third thing given to you? That T7 lies between 130 and 140. So this is the third thing which is given to you. Okay, so now we know the formula of Sn. Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So put the formula of, so what will be S7? N is equals to 2, you get this. Now solving it out, you will get A is equal to 9D. Okay, now this is the second thing given to us. So what is Tn equals to? A plus n minus 1D. So T7 is equals to, or you can write it as A is n, that is the same thing, that is A plus 6D.
because n is 7 here. So 130, so now is so a plus 6d is between 130 and 140. Now we want to find the value of d here, students. Common difference, that is what we need to find in this question. So put the value of a from here to here. So using equation number 1. So a is equal to 90 we put, and we get 9d plus 6d is equals to 15d. Now divide both sides by 5, all sides by 5. What do we get? 8 points means 26. So 130 divided by 5, 140 and 15, all of them divided by 5. So we get this. Now all of them divided by 3. Okay? Okay, sir. So divide by 5, divide by 3. What do you get? 8.66. So D is between 8.66 and 9.33. Now it is given, now all the terms of AP are natural numbers, that is given to you. So it means that D is also a natural number. Yes. So which natural number comes between 8.66 and 9.33? भाई वो नंबर जो 9. So D is equals to 9. यस बेटा, प्रॉब्लम है कोई? No, sir. No, sir. No, sir. ओके बेटा, ओके. तो आपने देखा आईआईटी के क्वेश्चंस जो हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते. बस एक दिमाग में जो है ना एक हवा है, और जिसकी प्रिपरेशन कम होती है वो उसमें पहले से ही कॉन्फिडेंस कम होता है. तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप मेहनती बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है. तो इसीलिए आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूँ. और हम इस क्लास में डेली प्रैक्टिस ही नॉर्मली वो क्वेश्चंस करेंगे जो आईआईटी में आते हैं. तो इसीलिए डू द मैथ्स विद कॉन्फिडेंस एंड विद इंटरेस्ट. चलिए स्टूडेंट्स, शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट डाउन हो गया ये? Yes, sir. तो आईआईटी के क्वेश्चंस में बस इतना ही डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स कि उसमें ना कहीं इनइक्वालिटी आ जाएगी, आपको थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ती है बस. और एक दूसरी बात, मल्टीपल कंसेप्ट यूज होते हैं. तो लॉजिकल थिंकिंग एंड मल्टीपल कंसेप्ट्स आप इजीली आईआईटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स. शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. ओके, नोट डाउन हो गया सबका? Yes, sir. और स्टूडेंट्स इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक इट्स ए प्रॉब्लम. ओके, चलिए. अच्छा, अब जो है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा. आपने लॉग की प्रॉपर्टीज स्टडी की है स्टूडेंट्स अब तक? No, हाँ? sir. नहीं किया. चलो कोई बात नहीं, चलिए लॉग सीखते हैं No, फिर. sir. चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ लॉग. तो स्टूडेंट्स देखिए, हम बिल्कुल बिगिनिंग में जो चीज़ है, जो सबसे आसान, जो पता है, जहाँ से लॉग ये देखिए, ये इसको कैसे रीड करेंगे? log 100 टू द बेस 10. कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स इसे? log ऑफ 100 और log 100 टू द बेस 10. तो ये 10. हाँ, तो ये जो 10 है, ये क्या स्टूडेंट्स आपका? बेस. Peace. तो log किसका निकाल रहे हैं आप? 100 का.
ओके, तो log 100। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप 100 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो जिसका बेस 10 हो। बात समझ आ गई? तो 100 को क्या लिख सकते हो आप? 10 into 10 10. square. 10 स्क्वायर। तो बस log का मतलब यही होता है कि आप बताओ कि ये 100 जो है इसकी जो पावर होगी वही आपका आंसर होगा। आसान है ना स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए बताइए, log 10 1000 कितना होगा? 3. 3. यस, तो अब हम इसको लिखते हैं, ये log है, इसका बेस 10 है, तो यानी कि 1000 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे जिसका बेस 10 हो, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ तो ये जो 10 है आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब log का यही है कि भाई पावर कितनी है। तो अगर 10 के बेस में लिख दिया जाए तो ये बेस सेम है, तो जो पावर है वही आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ आई? यस सर। चलिए गुड। अब एक होता है log टू द बेस e। दो log ही ज्यादातर हमें हमारे लिए यूज होते हैं। एक होता है log टू द बेस 10 और एक होता है log टू द बेस e। ओके, ये जो e है स्टूडेंट, जैसे आपका पाई है, पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई जो है वो रेशियो है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की। ओके, आपको पता भी होगा सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, तो 2r इज डायमीटर, सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर इनटू पाई, सो पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? हालांकि हम इसको 3.14 लिख देते हैं या 22/7 लिख देते हैं, तो 22/7 रैशनल नंबर है, लेकिन कैलकुलेशंस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली ये इर्रेशनल नंबर है पाई। तो उसी तरीके से ये ई भी एक इर्रेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू होती है 2.73। तो ई भी एक कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर स्टूडेंट्स। ओके, Yes, sir. तो अगर ये log e रेज टू द पावर 2 तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 आंसर है, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग गया होगा कि log का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब जो है log की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल क्या है? आपके पास log टू द बेस b है, log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। अगर बेस सेम है स्टूडेंट्स, बेस क्या होने चाहिए? सेम। तो जो ये आपने ऐड किया है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log सेम बेस m इंटू n। सर ये कैसे हो गया? चेक करके देख लो। log टू द बेस 10 100 प्लस log टू द बेस 10 1000, तो देखो क्या आएगा? log टू द बेस 10 और यहां आपने मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट दोनों को, m और n को, तो यहां कितना आ गया? 1 और कितनी 0? 5. बस। 5। तो देखो ये करेक्ट है या नहीं है, बताओ चलो मुझे। देखो इसका मतलब क्या हुआ? 2। इसका मतलब क्या हुआ? 3. इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना? 10 की पावर 5 लिख दे इसकी जगह, 5. 5 आ गया। तो देखो 2 + 3 = 5, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट प्रोडक्ट रूल याद हुआ आपको? Yes, sir. कि अगर Yes, sir. हाँ, तो आप जो है मल्टीप्लाई हो तो ऐड करके लिख सकते हैं, log को अलग अलग कर सकते हैं, और अगर अलग अलग है, ऐड है, बेस सेम है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। उससे आंसर पर कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए दूसरा है हमारा, ये फर्स्ट रूल हमने कर लिया। सेकंड रूल है कोशेंट रूल। क्या है? क्वेश्चन टू Question true. तो log b टू द बेस m, अब यहां प्लस की जगह है माइनस स्टूडेंट्स। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। करके देख लो। इसको आप मान लो, सपोज इसको 1000 मान लो इस बार, और इसको मान लो 100। वैसे -1 से भी आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव के लिए जो है ना लॉग डिफाइन नहीं होता स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बताना, अगर आप दोनों मान के कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर आ जाए, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मान लो आपने इसको 2 ही मान लिया तो 2 - 3, और यहां क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका? log 10 टू द बेस m कितना था? 100, 10 to the base 10. और ये 1000 था आपका n, यही है ना? n आपका 1000 है ना, और m आपका कितना है? 100। तो ये कितना आ गया? log टू द बेस 10, और इसको क्या ले सकते? ये क्या आएगा? 10 की पावर -1। तो आ गया ना स्टूडेंट्स, -1 इक्वल्स टू -1। तो प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल समझ में आया सबको? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स तरीका मैंने बता दिया है। बहुत सारे तरीके से टीचर्स इनको समझाते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको सबसे इजी तरीके से समझाया है लॉग कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड रूल। Sir, हाँ बेटा। sir, we can let m and n by own selves. हाँ, आप जो है m और n आप कुछ भी मानने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको इजी एग्जांपल से समझाया है। ठीक है ना? Okay, sir. ये आपकी, ये तो बेटा एक जो है मतलब इससे प्रूव नहीं होता। देखो सुनो, एक क्या सर आपने प्रूव किया इसको? नहीं, मैंने प्रूव नहीं किया, ये इससे प्रूव नहीं होता। समझ रहे हैं? मैं यहाँ इसका प्रूफ नहीं दे रहा। दिस इज नॉट द प्रूफ ऑफ दिस रूल। ये तो सिर्फ एक आपको समझाने का एक तरीका है कि भाई देखो इसको अप्लाई करके देखो, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल्स की टर्म्स में मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, लेकिन आपने उसको अप्लाई किया तो मजा आया आपको। ठीक है ना? तो ये एक एग्जाम्पल करने से, एक एग्जाम्पल देने से ये चीज प्रूव नहीं होती स्टूडेंट्स, ये मैं बता दूं आपको। चलिए अगला पावर रूल क्या है? लॉग बेस, अब ये था आपका log 10 टू द बेस 100 था स्टूडेंट्स, log 100 टू द बेस 10 था। आपने इसको कैसे लिखा? log 10 और 100 को कैसे लिखा? 10⁻²। Yes, sir. लिखा? कोई दिक्कत है? तो इसको आप, आंसर क्या है आपका? 2 आया? नहीं आया 2? Yes, sir. अच्छा अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप इसको सपोज ऐसे सॉल्व करते, मैं इस ये जो 2 आया है इस 2 को यहां आगे लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 2 × 1, ये भी 2 ही है। तो यानी कि जो पावर है मैं उसको कोफिशिएंट लिखूं या पावर लिखूं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? डज इट मैटर No, sir. whether I am writing this 2 as coefficient or it remains here as power? If it remains here as power, then I directly get 2. If I shift 2 as the coefficient, as product, I am multiplying it, then this is 10 means 10 raised to power 1. So log 10 to the base 10 is 1. So 2 multiply 1 is 2. So you get the same answer, students. So it means my rule is that log to the base b and m is raised to the power, suppose p. Okay, then I can write it as p power can come in front and log b to the base m.
दिस इज पावर रूल। तो आप पावर को यहां लिखो या पावर को मल्टीप्लाई करके आगे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं पावर रूल। स्टूडेंट सारे अच्छे से समझ रहे हैं ना आप? यस Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल विद एग्जांपल समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप लॉग को। लॉग आपका अब तक एपी में सर ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया क्लास में? No, sir. चलो डजेंट मैटर। अब आप आज आपने लॉग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया स्टूडेंट्स। ये फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी। और अगर आप इको ऑनर्स करते हैं, कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज का, तो इको ऑनर्स करेंगे तो ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। मैथ्स में तो आएगा ही आएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अच्छा अब इसका एक फोर्थ और कर लेते हैं हम, फोर्थ प्रॉपर्टी लॉग की, और वो है बेस रूल। इसको आज हम ऊपर वाली दो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल और पावर रूल को। ये बेस रूल है। ये भी बहुत आसान सी बात है कि लॉग m टू द बेस m, इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन log b। ध्यान से देखिए, log m टू द बेस b था, इसको हम कैसे लिखते हैं? log m अपॉन log b, और इनका बेस सेम होना चाहिए। बेस चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। आपने बेस चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, देखा आपने? यहां बेस क्या था? b, और यहां बेस क्या लिया है? a। सर इसका एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल दे इसका एक। सपोज Yes, आपका बेस है 100, ठीक है, और आपका m है 10,000। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अब मैं इसको log 10 के उसमें लिख सकता हूं, 100 देखो मैंने बेस चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, बेस 10 कर दिया। तो देखो दोनों तरफ से सेम वैल्यू आएगी नहीं आएगी? तो LHS क्या हो जाएगा आपका? log 100, और ये 10,000 को क्या लिखता है? 100 रेज़्ड टू पावर 2। और यहां क्या आएगा? log 10 टू द बेस 100। 100 क्या है? 10 रेज़्ड टू पावर 2 है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. और 10,000 क्या है? 10 रेज़्ड टू पावर 4। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? यहां से क्या आएगा? 2/4। स्टूडेंट्स हमने गलती कर दी, ये m ऊपर है और b नीचे है। तो ऊपर क्या होगा? 10,000, और नीचे कितना होगा? 100। तो ऊपर होगा 4, नीचे क्या होगा? 2। आंसर मैच नहीं कर रहा था ना? तो 2/1 आया स्टूडेंट्स, और ये भी क्या आपका? दिस आल्सो 2/2 ही है, ये भी आपका 2/1 लिखो, 2 लिखो। यस Yes, sir. तो स्टूडेंट्स आपने बेस जो है वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये 4 रूल हैं, ये आप इनको नोट कर सकते हैं। दिस आर द 4 रूल्स जो अभी आपने किए। Sir, फोर्थ का नाम क्या है? ये बेटा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये 4 रूल आपने किया। देखो ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब से ऊपर जो चीज लिखने की है वो मैंने आपको बताया, वो लिखना log टू द बेस 10 100, दिस इक्वल्स टू log टू द बेस 10 एंड 10 रेज़्ड टू द पावर 2। 100 को ऐसे लिख सकते हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो यही है, ये log का मीनिंग। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बेटा, सर ये जो log रूल है वो 10 के लिए कैपेबल है ओनली? अरे बेटा सब के लिए है। 2 भी बेस हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, जो मर्जी नेचुरल नंबर ले लो आप। ओके सर। लेकिन ज्यादातर हम कौन से 2 बेस लेते हैं? E एंड 10। कौन से लेते हैं? E and 10। ध्यान से देखो मेरी बात। log
टू द बेस 10, ये बुक में log 10 बेस m, ये मान लो कोई नंबर m, तो आपको log m लिखा हुआ मिलेगा बुक में। और अगर log टू द बेस e है तो आपको ln नेचुरल log टू m ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बुक में। तो इनको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, ये देखा आपने, बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये और ये। log टू द बेस 10 में 10 नहीं लिखते, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना तो इसका मतलब उसका बेस 10 है। जैसे 2 के आगे कुछ लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, प्लस। और अगर बेस ई है तो हम उसको लिखते हैं ln नेचुरल लॉग, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो ln लिखा हुआ मिलेगा बुक में, तो इसका मतलब समझना log टू द बेस ई है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो, log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Sir. चलो अब आप, शैल वी मूव फॉरवर्ड? नोट डाउन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। चलिए स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। ए बी सी आर 3 टर्म्स एंड दे आर इन एपी। तो स्टूडेंट्स अगर एपी में है 3 टर्म्स ए बी सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए इज इक्वल्स टू C सी माइनस बी। C minus B. तो बेटा इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ? 2B is equals to A plus C. यस, तो एक तरीके से ये b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2 भी लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? A plus C by 2. यस, तो b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। तो b जो है वो अर्थमेटिक मीन है, एक तरीके से एवरेज जिसको आप बोलते हैं, या सिर्फ मीन भी बोलते हैं। तो बीच वाला जो नंबर होता है वो क्या है, मीन ऑफ ए एंड सी। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो हमारे जो काम की बात है इस क्वेश्चन में जो यूज होगा वो है 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आपको 3 टर्म दे रखी हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। दे आर इन एपी, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्टूडेंट्स। ओके, निकालें। तो तीनों टर्म एपी हैं, तो ये है आपका ए, ये है बी और ये क्या है, सी। तो क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स बताओ? 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। A plus C. बस यही लिखा है। तो b को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ओके, देखो 2 इंटू लॉग ऑफ 2x माइनस 5 टू द बेस 3 इज इक्वल टू ए क्या था आपका? इज दिस क्लियर? Log 2 to the base 3. यस, प्लस Plus सी। log 2x minus 7 by 2 to the base 3. यस, तो स्टूडेंट्स आपने जो एपी की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो लिखा हुआ था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको, इस वर्ड को यूज किया आपने, इस वर्ड को, ये फर्स्ट गिवन थिंग था आपके पास, और कुछ गिवन भी नहीं है आपके पास, सिर्फ यही एक गिवन चीज थी बस, और उसी का आपने यूज कर लिया, और यूज करके आपने क्या बना दी, इक्वेशन बना दी स्टूडेंट्स। अब आपका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक गिवन थी क्वेश्चन में, वही आपने यूज कर लिया। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है।
तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन स्टूडेंट्स ये? logarithmic equation. बस चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब पावर रूल यूज करें हम। ये आगे 2 मल्टीप्लाई था, इसको आगे 2 मल्टीप्लाई करें या इसको पावर में लिखे, कोई फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स इससे? इस 2 को यहां लिखें या इसको यहां लिखें? पावर रूल, ये देखो पावर रूल, चाहे ये जो पावर p है इसको यहां लिखो या इसको आगे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने जो आगे मल्टीप्लाई था एज ए कोफिशिएंट था, इसको कहां ले गए हम? पावर में ले गए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां कौन सा रूल यूज किया आपने? यूजिंग 4 पावर रूल। कौन सा यूज किया आपने? पावर रूल। अच्छा, यहां कौन सा रूल यूज किया स्टूडेंट्स? ये 2 मल्टीप्लाई हैं, ये दोनों में एडिशन है और बेस सेम है, तो हम Product rule. प्रोडक्ट रूल, यहां आपने यूज किया प्रोडक्ट रूल। तो दोनों को आपने क्या कर दिया? प्रोडक्ट रूल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और बेस वही रहा 3 जो दोनों का था, log 3 log 3। अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताइए, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। ये LHS जो है वो RHS के इक्वल कब हो सकता है? आप मुझे बताओ। चलो, LHS जो है वो RHS के इक्वल कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ। यहां भी log 3 है, दोनों कंपेयर करेंगे हम। यहां भी log 3, यहां भी log 3। इसका मतलब ये जो चीज है ये इसके इक्वल है या नहीं? अरे ये दोनों इक्वल है ना, ये इक्वल तभी तो होंगे। यहां भी आपने log 3 ले रखा, ये भी log 3, तो ये तभी तो इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. तो बस, तो इसका मतलब log 3 इसको हटा दो बस, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। एग्रीड? Yes, sir. हाँ बेटा, हाँ। Sir, हाँ। sir, we can't cut log 3 in paper 9 left. नहीं नहीं नहीं, पेपर में नहीं करना आपको, हम तो सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे सर ये कैसे कंपेयर किया आपने? सपोज मैं लिखता हूं यहां पर 2x इज इक्वल्स टू 2y, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल्स टू X y। equal to y. कंपेयर किया ना भाई, Yes, sir. एक नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो वही आता है, इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो वही आता है। इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या हो गए? आपस में सेम हो गए। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं सपोज आपका भाई ये किसी भी आपको एक सिंपल सी बात है, आपने लिखा log 10 to the base x इज इक्वल टू log 10 to the base y, दोनों इक्वल हैं और इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब x भी 100 है और y भी 100 है, तो दोनों इक्वल है या नहीं आपस में? तभी तो होगा वो। Yes, sir. तो स्टूडेंट्स वही है, तो कंपेयर करते हैं। LHS RHS को कंपेयर किया हमने और इनको इसके इक्वल, तो इसको इसके इक्वल लिख दिया। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब पुट करें स्टूडेंट्स। 2x को किसके इक्वल पुट कर दो? t के, y के, a के, जिस मर्जी वेरिएबल के। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करते हैं या नहीं करते आए? ये क्वेश्चन आपने 10th में किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस। Yes, sir. बस वैसा ही क्वेश्चन है। तो 2x को किसके इक्वल पुट कर दिया स्टूडेंट्स? t के। ठीक है। तो क्या आ गया? t माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू t माइनस 7 बाय 2। इसको आप 1 2 3 4 हमने ऊपर नाम दे रखे, तो इसको मैंने इक्वेशन a नाम दे दिया, कैपिटल A, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुट 2x इज इक्वल टू t इन द अबव इक्वेशन। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? अब आपके पास इजी इक्वेशन आ गई। t माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू t माइनस 7 बाय 2। यहां तक पहुंच गए सब? Yes, sir. तो बस अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? इससे t स्क्वायर और ये प्लस 2t इधर आ क्या आ जाएगा? माइनस 2t, तो माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12t प्लस 32 इक्वल्स टू 0, और ये माइनस 7 उधर आके प्लस 7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स इसमें? No, sir. चलो तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो क्या फैक्टर बनेंगे? टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32।
तो t माइनस 4 इंटू टी माइनस 8, देखो इनका सम ये होना चाहिए -12, देखो दोनों का सम -12 है, -4 -8 -12 है, और प्रोडक्ट +32 होना चाहिए, देखो प्रोडक्ट दोनों का क्या है +32। तो आप ऐसे ऐसा ऐसा कर 8 सकते और 4. यस। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, अगर ये है तो आपके हो गए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां से क्या आ गया, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 8। अरे आया नहीं आया, अरे इधर आ गया सर। तो बेटा t किसके इक्वल था, 2 रेस्ट बार x के ना। Yes sir. अब वापस आपको वैल्यू x की निकालनी है, t की थोड़ी निकालनी है। क्वेश्चन में क्या है x, तो जो आपने पुट किया था वापस x पे पहुंचो। तो ये t था आपका 2 रेस्ट बार x, तो 4 को क्या लिखता हूं मैं 2 रेस्ट बार 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। 2. उसी तरह 8 को क्या लिख सकता हूं 2 रेस्ट बार 3, Yes sir. t की जगह 2x लिख दिया आपने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहां पर भी तो आपने LHS और RHS को कंपेयर ही किया स्टूडेंट्स, यहां भी तो कंपेयर किया आपने LHS और RHS को कि ये दोनों साइड तब इक्वल हो सकती हैं जब मैं यहां x या 2 लिख दूं, यहां x की जगह 3 लिख दूं, तब दोनों चीज इक्वल होंगी। ये बात समझ आई स्टूडेंट्स। Yes sir. तो बेटा दो सॉल्यूशन आ गए आपके पास। अब आपको क्या होता है आईआईटी में आपको चेक करना होता है कि सॉल्यूशंस वैलिड है या नहीं है, इवन सीबीएसई में भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर ट्रिक्स ज़्यादा यूज़ करनी होती हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आप देखेंगे कि अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूं यहां पर, इसके अंदर log 3 इसके अंदर या इसके अंदर, तो स्पेशली इसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर फर्क पड़ेगा जो आपकी टर्म b है बीच वाली। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस टर्म, व्हाट डू यू गेट स्टूडेंट्स 2 रेस्ट पावर 2 4, और क्या आ गया log ऑफ -1 टू द बेस 3। तो स्टूडेंट्स क्या log ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड है, नो सर। No, sir. नॉट डिफाइंड, इसीलिए इसका आंसर x इज इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो इसलिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन बच गया इस इक्वेशन का, वो बच गया x इज इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं आपने जो है मतलब इस क्वेश्चन में सीखे हैं, काफ़ी मैथ्स काफ़ी यूज़ हुआ है। तो आई होप, लेकिन क्वेश्चन था बहुत इजी, तो कंसेप्ट सारे यूज करा लिए, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी था, है ना। Yes sir. चलिए अच्छी एक्सरसाइज हो गई हमारी, Yes, sir. माइंड की अच्छी एक्सरसाइज हो गई। एक क्वेश्चन और करना स्टूडेंट्स अभी हमें, हैं चलें आगे चलें। Yes sir. ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक एपी दे रखी है और फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 100. 100 टर्म्स हैं। और फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 3. 3 दे रखी है आपको फर्स्ट टर्म। और सम ऑफ द टर्म्स, अब तक आप एस एन लिखते थे ना, तो यहाँ पे पी टर्म्स हैं तो एस पी लिख दिया। एस पी मतलब कितनी टर्म्स का सम है, ये 100. सम ऑफ पी टर्म्स। पी जैसे फार्मूला है तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला दे दिया आपको, पी टर्म्स का फार्मूला है ये स्टूडेंट्स। और पी जो है वो आपका क्या हो सकता है 1 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S3 निकाल लो, S4 निकाल लो। तो भाई ये सिंपल सारी टर्म्स को ऐड कर दो, तो ये तो कोई अलग से कोई बात नहीं हुई, बस लिखने का ढंग अलग कर दिया उसने, है ना, कोई नई चीज नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड चीज है स्टूडेंट्स। चलिए, फॉर एनी इंटीजर n जो है वो 1 से 20 के बीच में है, 1 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है, उनके बीच में हो सकता है, लेकिन तो इसका मतलब जो वैल्यू हो सकती है 1 2 3
अप टू 20 इंटीजर्स हैं सारे. फॉर एनी इंटीजर n m इज इक्वल्स टू 5n. तो आपको बताना है कि जब आप sm अपॉन sn लिखोगे तो वो n के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ये गिवन है आपको. तो a2 बताओ क्या है. सेकंड टर्म ऑफ द एपी आपको बतानी है. ये a2 बतानी है. a2 क्या है. ओके तो क्वेश्चन ये बड़ा आसान है. ये आपको क्या क्या चीज गिवन. देखो कितनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. तो सबसे पहले इसी को यूज करना शुरू कर ले. एस एम अपॉन एस एन. खासतौर से ये जब दिया हो तो बताओ एस एम अपॉन एस एन क्या हो जाएगा. सम ऑफ एन टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स. m/2 अच्छा एम किसके इक्वल है. 5n. तो चलो इसको भी यूज कर लेते हैं. So 5n/2 बिल्कुल ठीक है. 5n/2. आगे बेटा 2a 2a. ए कितना है. ए भी गिवन है. इसको भी यूज कर लो. ए कितना है 3. कर लो यूज इसको भी. 5n plus minus 5n I minus minus 1D. वेरी गुड. ये आईआईटी में आया था बेटा क्वेश्चन 2011 में. तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. कॉन्फिडेंस आएगा आपको रोज आईआईटी के क्वेश्चंस करोगे तो. हैं चलो डिवाइडेड बाय एस एन का सम बेटे. n/2 हाँ x/2 2 into 3 हाँ plus n फर्स्ट हम तो minus 1 3 है. into 2a d प्लस n माइनस 1 इंटू. into d. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो अब इसे सॉल्व करो. क्या आएगा. The 2 get cancelled. हाँ बिल्कुल 2 कैंसिल हो जाएगा. बहुत अच्छे बहुत बढ़िया. n भी कैंसिल हो जाएगा. Yes sir, n get cancelled. हाँ तो क्या आएगा. अंदर सॉल्व करो. 5 इंटू 6 प्लस Plus 4 5 एंड डी and minus 1D. Minus d माइनस डी. बहुत बढ़िया. डिवाइडेड बाय divided by 6 हाँ plus nd minus d. 6 नहीं 6 माइनस एन डी 6 प्लस एन डी माइनस. Minus d. बिल्कुल ठीक है बेटे. बहुत बढ़िया. बिल्कुल ठीक है. कोई दिक्कत है इसमें. No sir. अब एक बात बताओ. उसने गिवन दिया है कि ये रेशो एन पे डिपेंड नहीं करती. देखो कितनी इंफॉर्मेशन आपने यूज कर ली स्टूडेंट्स. पहली इंफॉर्मेशन ये आपने लिखा. यही आप यूज कर रहे हैं. डज नॉट डिपेंड ऑन एन. m इज इक्वल टू 3n यूज कर लिया आपने. a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 3 ये भी यूज कर लिया आपने. अब आप यूज कर रहे हैं दिस. ये जो एक्सप्रेशन आपने आया डज नॉट डिपेंड ऑन n. n पर तो डिपेंड ही नहीं करता ये. जबकि इसमें n आया हुआ है ना आपका. और ये n पर डिपेंड नहीं करता. तो यानी कि जो आपका जो आंसर आएगा उसमें n नहीं होना चाहिए. तो n को कैसे खत्म कर सकता आप मुझे बताओ. चलो n को कैसे खत्म करोगे. क्या तरीका है n को खत्म करने का. m/5 value put. अगर आप इसको अगर मान लो d है इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आप क्या लिख सकते हो. इसको ऐसे भी लिखे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. और सिंप्लीफाई कर लो तो भी. हाँ आप बताओ मुझे ये n खत्म होना चाहिए क्योंकि गिवन है ये n पे डिपेंड नहीं है. तो d की ऐसी वैल्यू आपको बतानी है. d की वैल्यू ऐसी बतानी है जिससे n खत्म हो जाए. तो बताओ d की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे n खत्म हो जाएगा. m/5 equal to n. अच्छा एक बात बताओ. अगर d की जगह 0 लिख दूं तो सर 0. कितना आसान है. d को 0 लिख दिया आपने n खत्म हो गया. तो अगर d 0 है तो s m अपॉन एस एन क्या आया आपका. भाई 5 इंटू 6 अपॉन 6 आया ना. Yes sir. डेट इज इक्वल टू 5. तो ये केस 1 हो गया आपका. एक तो d की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि इसमें भी एस एम अपॉन एस एन जो है वो n पे डिपेंड नहीं करता. अब केस 2 बताओ. d की क्या वैल्यू रखूं जिससे n खत्म हो जाए. d की जगह अगर 6 रख दूं तो मैं
रखना d इज इक्वल टू 6, क्या होगा? एस एम बाय एस एन इज इक्वल्स टू, हाँ, 5 इंटू 30n minus 6. 6 प्लस 30d, सॉरी 30n, Plus 30n minus 6. हाँ, डिवाइडेड बाय 6 6 प्लस, plus 6n minus 6. नहीं 6x प्लस 6d माइनस, सॉरी d की जगह 6 लिख दिया ना आपने, तो 6n, यस ठीक बता रहे थे आप बेटे, माइनस 6। तो क्या हुआ इसमें, ये 6 से 6 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, तो क्या है आपका 5 इंटू 30n 25. अपॉन 6n, बिल्कुल n से n कट गया। यही तो करना था आपको, 25. आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी थी जिससे n खत्म हो जाए। एग्री है स्टूडेंट्स? Sir. चलिए, तो यानी कि Yes, d, sir. ये d की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। हमारा क्वेश्चन था a2 बताओ, तो a2 के लिए हमें d तो चाहिए था, क्योंकि a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, है ना? A2 is 8. तो यहां से बताओ मुझे केस 1 में a2 कितना आएगा स्टूडेंट्स? केस 1 में 8. a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, A1 plus D. a1 तो 3 है, d कितना है केस 1 में? 5. 0 0, d 0 लिया बेटा आपने, एस एम अपॉन एस एन 5 है, जो कि n पे डिपेंड नहीं करता है, गिवन है। 3 आएगा केस 1 में। हाँ, क्या आएगा? 3. 3, a2 टर्म हो गई 3, यानी कि आपको सारी टर्म ऐसे ही मिलते चली जाएंगी। कॉमन रेशो आपने d ले ली, तो आपको सारी टर्म्स क्या मिलती चली जाएंगी? रिपीट करेंगी टर्म सारी, क्या करेंगी? रिपीट। लेकिन रिपीट होगा नहीं यहां पर, तो इसका मतलब क्या है? ऑल टर्म्स आर सेम। इफ सारी टर्म सेम है, कब? इफ d इज इक्वल टू 0, तो इसलिए d 0 तो होगा नहीं स्टूडेंट्स, तो इसलिए इस ऑप्शन को तो हम मान लेते हैं कि देयरफॉर d इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर d 0 है तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, तो ये तो बनेगी नहीं। अब नीचे आ जाओ, नीचे के अनुसार बताओ a2 कितना आएगा इसके अनुसार? a1 9. 3 है प्लस 6 9, तो ये हो गया आपका आंसर, a2 इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स, आपने जो IITA क्वेश्चंस किया, आपने देखा कि क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन लॉजिक यूज करना पड़ता है। ये डायरेक्ट तरीके से नहीं होते कि जैसे ये बता दिया भाई डज नॉट डिपेंड ऑन n, तो यहां आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि d की कौन सी 2 वैल्यू थी। उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन भी आपने किया था, उसमें भी ऐसे लॉजिक था। तो बस यही डिफरेंस होता है नॉर्मल क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सर। Thank you, sir.